students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion. We will be revising the complete concept of the chapter along with MCQs. Topic for this lecture is basic organic chemistry. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? So as you know, this chapter is the basis of the total organic chemistry. The concepts taught in this chapter will be used in each and every chapter of organic. Maybe it is hydrocarbon or alkyl halide or alcohols or aldehydes, even carboxylic acids. So what are the topics we will be studying here? Number one, types of effects, in which you will be having inductive effect, hyperconjugation, mesomeric effect, electromeric, resonance, etc. You have to learn which effect is operative on sigma bond, which is operative on pi bond, and what is the difference between inductive effect and resonance effect. Apart from that, types of intermediates. Reaction intermediate may be a carbocation or carbon ion or free radical. It can be a carbene or even a nitrene, and which of them is electrophile, which of them is a nucleophile, that we have to learn. Apart from that, the types of mechanisms, types of reactions. The given reaction is an addition reaction or substitution, or it is an elimination reaction. You have to recognize. Once the reaction is given, you should be able to tell whether it is electrophilic addition or nucleophilic addition, or it can be free radical addition. In this way, substitution reactions will have SN1, SN2. Elimination reaction will have the type E1 and E2. Even E1CB you have to learn. And next will be the rearrangement reaction. Many examples in our total syllabus of organic are the rearrangement reactions. You have to learn their mechanism also. So let's start with these questions. Question number 1 on the screen. Which of the following acts as an electrophile? You are given chloride and hydroxide. Electrophile आपको चाहिए. Chloride hydroxide, then CH3 plus and CH3CO plus. CH3 plus is methyl carbocation and other one is acyl carbocation. We can mention here this is acyl carbocation. Next option is methyl chloride and then you are given CH3COCl मतलब acetyl chloride. तो हमें ये देखना है इलेक्ट्रोफाइल कौन है. Electrophile needs electrons. Electrophile means it is in need of electrons. इसको electrons का जरूरत है. Itself it carries a positive charge or it can be electron deficit. तो इलेक्ट्रोफाइल या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है या फिर पॉजिटिवली चार्ज ना हो तो न्यूट्रल भी हो सकता है. उस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होगा. इट विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मॉलिक्यूल, जैसे कि BF3 होता है, जैसे BeH2 होता है, राइट. तो अब देखो हमारी ऑप्शंस में ए ऑप्शन में तो नेगेटिव चार्ज है, क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, इनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, इनके पास तो ऑलरेडी एक्सेस है. सो दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स. इलेक्ट्रोफाइल बी ऑप्शन में है जहां पॉजिटिव चार्ज आयन दिए हैं CH3 प्लस एंड CH3CO प्लस विच इज एसाइल कार्बोकेटाइन. सी ऑप्शन डी ऑप्शन में तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिए मिथाइल क्लोराइड एंड एसिटाइल क्लोराइड. इनके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है. फॉर एग्जांपल अगर आप CH3 प्लस को CH3Cl को देखोगे तो कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 बॉन्ड्स, राइट. 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन. कोई भी ऑक्टेट में इनकम्प्लीशन नहीं है, कंप्लीट ऑक्टेट इज देयर. दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिसिट. उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए. इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? बी ऑप्शन को, CH3 प्लस एंड CH3CO प्लस. गॉट इट. तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सबसे पहली चीज है इस चैप्टर के अंदर, जो कि हमारे एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आता है. 4 ऑप्शन में से आपको इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? यू आर गिवन कार्बोकेटाइन इज एन इलेक्ट्रोफाइल. फिर दिया है फ्री रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक. देन इट इज गिवन carbene has incomplete octet, carbon ion also has incomplete octet. Select the correct answer using the codes given below.
कौन कौन सा करेक्ट मैच है ये बताना है। क्या कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है? रिटन इन द फर्स्ट ऑप्शन। लेट मी एक्सप्लेन। कार्बोकेटायन इज आर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मतलब इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। किसी भी कार्बोकेटायन में सेंट्रल कार्बन के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सो इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये तो हुआ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट वन इज करेक्ट। फ्री रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक, रिटन एट सेकेंड नंबर। फ्री रेडिकल एंड पैरामैग्नेटिक। तो देखिए फ्री रेडिकल क्या होता है? कार्बन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स। It is a species in which central carbon is surrounded by 7 electrons. Free radical sp2 hybridized होते हैं। sp2 का मतलब वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर इस तरह से हम बनाएंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होता है, उस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो ये हुआ फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड मीन 6 इलेक्ट्रॉन एंड 1 इज दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो जिस किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल भी होगा। इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए क्योंकि इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आगे क्या है? कार्बीन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो देखते हैं कार्बीन क्या चीज है। कार्बीन होता है CH2 एंड 2 डॉट्स। डॉट्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी न्यूट्रल है बट इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है। इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीसीज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल कार्बन। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। और इसने और क्या दिया है ऑप्शन में? इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम, देयरफॉर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट। तो यहाँ पे इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, बट फोर्थ में लिखा है कार्बन आयन ऑल्सो हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दैट इज रॉन्ग। कार्बन आयन होता है R विद नेगेटिव चार्ज, CH3 नेगेटिव। इट इज मिथाइल कार्बन आयन। फिर मैंने लिखा इथाइल कार्बन आयन। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट नहीं है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के अराउंड। सेंट्रल एटम कार्बन आप देख सकते हो 3 बॉन्ड्स बना रहा है, और कोई भी अगर कार्बन आयन है वो पिरामिडल होता है शेप में। कार्बन आयन्स आर पिरामिडल इन शेप। तो हमारे पास इस तरह से हमने पिरामिडल का स्ट्रक्चर शो करना है। ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ ऑक्टेट इज कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये वाला ऑप्शन जो लिखा था कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है कार्बन आयन का, दैट इज रॉन्ग। बाकी सारे करेक्ट हैं। कार्बोकेटायन इज इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल इज पैरामैग्नेटिक, एंड देन इट इज मेंशन्ड दैट कार्बीन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बट कार्बन आयन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट इज रॉन्ग। तो हमारे को करेक्ट आंसर देखना है 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 मीन्स डी ऑप्शन इज द आंसर, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। CCl3 negative is more stable than CF3 negative due to more number of reverse hyperconjugative structures, strong minus I effect, p pi d pi conjugation, more basic nature. So question is very very important. CCl3 negative जो आयन है ये ज्यादा स्टेबल होता है as compared to CF3 negative. Why? देखिए CCl3 negative, इसका कंपैरिजन करना है हमें विद CF3 नेगेटिव। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्लोरीन हैज 3D सबशेल। क्लोरीन के पास 3D सबशेल एम्प्टी है, बट फ्लोरीन के पास तो नहीं है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल है वो है 3s2 3p5, आगे 3D जो है वो एम्प्टी है। बट अगर हम फ्लोरीन को देखते हैं तो फ्लोरीन है 2s2 2p5, तो 2D तो है ही नहीं, 2D डज नॉट एग्जिस्ट।
जो 2D है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस वजह से क्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो CCl3 नेगेटिव का जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के p ऑर्बिटल में, क्लोरीन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है, इसलिए इसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है, p पाई d पाई बॉन्डिंग। जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन के d ऑर्बिटल्स में चले जाएंगे ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, तो ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है, इसलिए ये आयन स्टेबल है। कैन आई मेंशन दैट नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन गेट्स डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स का मतलब स्प्रेड हो जाना, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन गेट्स डिस्पर्स्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ p एंड d ऑर्बिटल्स थ्रू पाई बॉन्ड, इसलिए p पाई d पाई बोलते हैं, p ऑर्बिटल कार्बन का, d ऑर्बिटल क्लोरीन का। सो वी हैव रिटन नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन गेट्स डिस्पर्स्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ p पाई d पाई ऑर्बिटल्स। गॉट इट? तो ये हमारे क्वेश्चन का मेन आंसर, जहां पे चार्ज स्टेबल है, जहां चार्ज स्प्रेड हो जाएगा वही आयन एग्जिस्ट करेगा। अगर हम CF3 नेगेटिव की बात करते हैं, CF3 नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम है? नेगेटिव चार्ज कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड बाय एनी बैक बॉन्डिंग, नो p पाई d पाई बॉन्डिंग इज देयर इन CF3 नेगेटिव, नो p पाई d पाई बॉन्डिंग, देयरफॉर इट इज लेस स्टेबल। ज्यादा स्टेबल कौन है? ये CCl3 नेगेटिव इज मोर स्टेबल। सो योर आंसर बनेगा ऑप्शन सी। यहाँ ऑप्शंस दिया था, मोर नंबर ऑफ रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, मोर बेसिक नेचर, ये कोई भी रीजन नहीं है, आंसर है p पाई d पाई बॉन्डिंग। गॉट इट? सो इंपॉर्टेंट था कार्बन आयन स्टेबिलिटी में, दीज आर दी 3 हैलोजेंस अटैच्ड, एक बारी फ्लोरीन एक बारी क्लोरीन लगाए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कैटायन इज, यू आर गिवन ए ऑप्शन ट्रोपाइलियम, ए ऑप्शन का जो कार्बोकैटायन है उसका नाम है ट्रोपाइलियम कार्बोकैटायन, बी ऑप्शन में बेंजाइल कार्बोकैटायन दिया है, सी के अंदर आपको टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन दिया है, और डी के अंदर दिया है विनाइल कार्बोकैटायन। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल एंड दिस इज विनाइल। ये सारे के सारे कार्बोकैटायंस हैं और इनमें हमें स्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है। मोस्ट स्टेबल you have to find out. Let's draw, let's talk about this tropylium carbocation. It is a 7-membered ring. You can see 1 2 3 4 5 6 and one more 7. 7-membered ring and 3 double bonds and a positive charge. इसको ट्रोपाइलियम कहते हैं। ट्रोपाइलियम का एक्चुअल नेम है साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कार्बोकैटायन, हाईली स्टेबल बिकॉज इट इज एरोमेटिक। ये कार्बोकैटायन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी होती है, एरोमेटिक है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज कर जाते हैं। और दूसरी बात, ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देयरफॉर द स्ट्रक्चर इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन से जो रेजोनेंस होगी वो स्प्रेड होती है, वो कैसे होगी? अगर स्ट्रक्चर स्टेबल है, कोई भी sp3 कार्बन बीच में नहीं आना चाहिए। sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल होता है तो वो नॉन प्लेनर होता है, एक ही प्लेन में जब सारे एटम होते हैं तभी रेजोनेंस होती है, तभी सिस्टम एरोमेटिक बनता है। सो इट इज हैविंग डबली बॉन्डेड कार्बन्स एंड ए पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन मीन्स ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो इट इज ट्राइगोनल प्लेनर, देयरफॉर इट इज एरोमेटिक, हेंस इट इज स्टेबल। अदरवाइज बेंजाइल है जो बी ऑप्शन, benzyl is also stable due to resonance. It is also having a conjugation, so it is resonance stabilized, it is conjugated, but ज़्यादा स्टेबल जो पूछा था, मोस्ट स्टेबल आपसे पूछा गया था, तो मोस्ट स्टेबल में आंसर है ये वाला जो है साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कार्बोकैटायन, इसी का नाम है ट्रोपाइलियम। ड्यू टू इट्स एरोमेटिक नेचर इट इज मोर स्टेबल। और फिर 3 डिग्री दिया है, फिर विनाइल दिया है, डी ऑप्शन में विनाइल दिया, विनाइल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता। आपका आंसर है ऑप्शन ए, मोस्ट स्टेबल हमारे पास ए ऑप्शन में है। गॉट इट?
Let's move to the next now. Question number 5. Regarding the phenomena of resonance, which one of the following statements is incorrect? रेजोनेंस के लिए सारी स्टेटमेंट्स दी गई हैं. फर्स्ट वन इज इट इज a permanent electron displacement. Then it involves delocalization of pi electrons. Effect of resonance decreases with increase of distance from the effective atom. All resonance structures are hypothetical. So देखिए, रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट होता है. रेजोनेंस का सिंपल मीनिंग है delocalization of pi electrons. Delocalization का मीनिंग है spreading all around. Spreading all around of pi electrons is called as resonance. उसके लिए कंडीशन होती है molecule has to be planar. जैसे कि बेंजीन प्लेनर कब होता है? when each and every carbon is sp2 hybridized, then the molecule is planar, right? तो ये sp2 कार्बन्स हैं सारे, और sp2 कार्बन्स की वजह से स्ट्रक्चर प्लेनर है. प्लेनर है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है. पाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने से रिजल्ट क्या निकलता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे हो जाएगा, इनको यहाँ मूव कर देंगे. तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी देख रखे हैं. तो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर गए. एंड इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वी कीप द डबल हेडेड एरो. ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकली हम शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर गया. अदरवाइज मॉलिक्यूल एक्चुअली किस में एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल तो रेजोनेंस हाइब्रिड में एग्जिस्ट करता है. रेजोनेंस हाइब्रिड हैज दिस सिचुएशन दैट पाई इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड ऑल अराउंड ऑन ऑल द 6 कार्बन्स. ये रेजोनेंस हाइब्रिड है. ठीक है, तो ऑप्शंस में इट इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज करेक्ट, एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कोई रिएजेंट डालेंगे तभी डीलोकलाइजेशन होती है. डीलोकलाइजेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट होती है. कंडीशन सिर्फ एक है कि मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड होना चाहिए. कॉन्जुगेशन इज रिक्वायर्ड. दिस इज द बेसिक कंडीशन. कॉन्जुगेशन का मतलब है ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड्स, एंड मॉलिक्यूल हैज टू बी प्लेनर ऑल्सो. तो ये सब करेक्ट है. बट यहाँ सी ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इफेक्टिव एटम. ये गलत है. रेजोनेंस का डिस्टेंस से कोई लिंक नहीं है. इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, नॉट रेजोनेंस. वी कैन मेंशन हियर इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, नॉट रेजोनेंस. डिस्टेंस से रेजोनेंस पे कोई असर नहीं पड़ता. अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन रिलीज देखते हो, लेट्स से कि यहाँ NH2 लगा है, ये NH2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है थ्रू प्लस आर इफेक्ट, तो ये सारी रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा. ऑर्थो मेटा पैरा सबके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, एंड नेगेटिव चार्ज अकमुलेट ऑर्थो एंड पैरा पे होता है. वी कैन से दैट टोटल रिंग बिकम्स rich in electrons due to plus R effect. ठीक है, तो इस तरीके से डिस्टेंस को कोई इफेक्ट नहीं है. सारी रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती है. वो अलग बात है कि नेगेटिव चार्ज अगर आप देखोगे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में तो वो अकमुलेट होता है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, राइट. तो ये पॉइंट गलत था कि इट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. ये रॉन्ग पॉइंट है, आपको इनकरेक्ट देखना है. आंसर बनेगा ऑप्शन सी. अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म्ड ऑन हेटेरोलाइसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको दिया है RMgX होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज RMgX. तो R के ऊपर है चार्ज, कौन सा वो देखने की बात है, नेगेटिव. मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, मेटल इज पॉजिटिव एंड कार्बन इज नेगेटिव. जनरली कार्बन क्लोरीन के साथ आता है, जैसे CH3Cl, तो कार्बन पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव. बट ग्रिग्नार्ड में कार्बन जो है इट इज अटैच टू मेटल, एंड ग्रिग्नार्ड इज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. इन एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम. तो हम क्या देखते हैं
कि R कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। जब यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन होगा, हेट्रोलिटिक मतलब अनइक्वल मैनर में, तो R नेगेटिव निकलेगा। R नेगेटिव इज कार्बन आयन। कार्बन कैरिंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बन आयन। ऑप्शन में दिया था कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल और सिंपल फ्री रेडिकल। आंसर इज कार्बन आयन विल बी ऑब्टेन्ड। यही तो स्पेशल बात है ग्रिग्नार्ड रिएक्शंस में कि अगर आपको कार्बन पे नेगेटिव चार्ज चाहिए तो ग्रिग्नार्ड का हेल्प लिया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is not an electrophile? H plus, BF3, Cl plus and double bond ethene. This is called as क्लोरोनियम आयन। इसका नाम है क्लोरोनियम आयन। H प्लस तो आपको पता ही है, प्रोटॉन बोलते हैं। एंड BF3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट। इलेक्ट्रोफाइल इज कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है अगर इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, इट मीन्स H प्लस और Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गए। एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और वी कैन से इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, तो BF3 न्यूट्रल है, बट BF न्यूट्रल मॉलिक्यूल और कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होना चाहिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिसिट लाइक BF3। BF3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मीन्स 3 bonds। 3 bonds means 6 electrons around boron, therefore incomplete octet। जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसको और इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत है। आप देख सकते हो ये रिएक्शन हो जाता है। BF3 नेगेटिव, BF3 के ऊपर अगर F नेगेटिव किसी तरीके से ऐड किया जाए तो BF4 नेगेटिव बन जाता है, मतलब BF3 ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, राइट। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। इट इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, it is nucleophile। इथीन इज न्यूक्लियोफाइल। इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं, और पाई बॉन्ड तो जल्दी से ब्रेक हो जाता है। पाई बॉन्ड ब्रेक्स एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के लिए पूछा था विच इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, तो आंसर बनेगा ऑप्शन डी। डी के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड में भी है, पाई बॉन्ड में भी है, बट पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है बिकॉज इट इज अ वीक बॉन्ड। दैट इज वाई इथीन इज नॉट इन रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, रादर इथीन कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप देख सकते हो ये रिएक्शन जब इथीन के ऊपर H प्लस ऐड होता है, इथीन पे जब H प्लस ऐड होता है तो पाई बॉन्ड H प्लस के आने से ब्रेक हो जाता है, और रिजल्ट क्या निकलता है कि कार्बोकैटायन इज प्रोड्यूस्ड। दिस इज दी कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन बना, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने का मतलब है कि इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। गॉट इट। तो बाकी सब इलेक्ट्रोफाइल थे। 2 चीजें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होता है मतलब या तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, अगर ये न्यूट्रल है तो फिर इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिक ऑर्गेनिक का चैप्टर शुरू ही यहां से होता है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का हमें पहचान होना चाहिए। विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के खुद के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स it requires positive charge. Nucleophile is in need of the positive charge. इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो खुद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और इट हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। या तो लोन पेयर होगा, जैसे कि अमोनिया के अंदर लोन पेयर होता है। Br नेगेटिव में आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, एंड अमोनिया मीन्स लोन पेयर इज प्रेजेंट। तो अब आपके पास सी ऑप्शन में दिया है ईथर, डाई मिथाइल ईथर इज गिवन टू यू। डाई मिथाइल ईथर मतलब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, राइट। तो हमें ढूंढना था विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। मैंने आपको 2 कंडीशन बताई न्यूक्लियोफाइल की, या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो बी ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज है, सी ऑप्शन में लोन पेयर है।
डी ऑप्शन में दो दो लोन पेयर हैं, बट ए ऑप्शन को देखते हैं। ए ऑप्शन इज FeCl3। लेट्स डिस्कस FeCl3, FeBr3 सॉरी, FeCl3 या Br3 एक ही बात है, हमें FeBr3 दिया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल विद आयरन, empty d orbitals are there, therefore it can gain electron, it acts as electron pair acceptor। जो जब कभी बाहर से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये अपने empty d orbitals में रख सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इस वजह से ये क्या बोलेंगे हम इसको, it is a Lewis acid, it can gain electron, it can not gain positive charge, it will not attack on the positive charge, so it is not a nucleophile। your answer is option A। Let's move to the next question number 9। Arrange the following radicals in order of decreasing stability। free radicals are given to you। for free radical हमें ये याद रखना है कि सेंटर कार्बन जो होगा उसके ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है। एंड 3 डिग्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। This is the stability order, stability order of radicals। तो अब हम देख लेते हैं ये वाला जो रेडिकल है फर्स्ट कंपाउंड में वो 3 डिग्री है। कैन आई से कार्बन हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर जो डॉट लगाया है इट इज अटैच टू 3 अदर कार्बन्स। ये वाला रेडिकल जो है ये 2 कार्बन से अटैच्ड है, जिस कार्बन पे रेडिकल है वो 2 और कार्बन से अटैच्ड है। In the compound 3 it is allyl free radical। allyl radical किसको कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दैट इज कॉल्ड एज allyl free radical। एंड allyl radical is stable due to resonance। इसका अगर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखिए मैंने सिंगल हेडेड एरो लगाया और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, ये जो अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो भी आ गया। जब जब सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आपने सिंगल हेडेड एरो लगाना है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो गया और यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से फ्री रेडिकल के अंदर आपने रेजोनेंस देख लिया, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड रेडिकल है। तो हमारे पास आंसर बनेगा मोस्ट स्टेबल, तो आएगा allyl फ्री रेडिकल विच इज रिटन इन डी ऑप्शन की थर्ड कंपाउंड मोस्ट स्टेबल है। थर्ड के बाद 3 डिग्री, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, राइट। वाई 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस तो सबसे ऊपर हो गया, ये तो टॉप पे आएगा, इसलिए allyl तो टॉप पे आ गया। अब 3 डिग्री 2 डिग्री का जब कंपैरिजन करेंगे, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री बिकॉज ऑफ more number of hyperconjugative structures, because of more number of hyperconjugative structures। जो 3 डिग्री रेडिकल है it is more stable। this is the stability of free radical। free radical के अंदर हमने याद रखना है हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी डिस्क्राइब होती है, तो मोर इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो थर्ड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड देन सेकेंड, आंसर बनेगा ऑप्शन डी। गॉट इट। सो रेडिकल का स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन का, कार्बन आयन का, कार्बीन का, ये सब हमें इस चैप्टर के अंदर लर्न करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज एरोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरोमेटिक कैसे देखते हैं, एरोमेटिक के लिए कंडीशंस होती हैं, इट शुड बी कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेशन चाहिए। कॉन्जुगेशन के बाद रेजोनेंस कब होगी, अगर स्ट्रक्चर प्लेनर है, एंड इट इज साइक्लिक एंड इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक। तो ए ऑप्शन में अगर हम इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के भी 2 इलेक्ट्रॉन। कैन आई से इन ए ऑप्शन देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड के भी और नेगेटिव चार्ज दोनों हमने काउंट किए। बी ऑप्शन हैज गॉट 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 डबल बॉन्ड थे, 1 नेगेटिव चार्ज था।
सी के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज, बट प्रॉब्लम क्या है, इन सी ऑप्शन ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। एज अ रिजल्ट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर। sp3 कार्बन एक भी बीच में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर बना देता है, जिस वजह से रेजोनेंस इज प्रिवेंटेड, रेजोनेंस कैन नॉट टेक प्लेस। और डी ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इट हैज ओनली सिंगल नेगेटिव चार्ज एक ही है, और कुछ फर्दर ये sp3 कार्बन्स भी आ रहे हैं, sp3 कार्बन से तो रेजोनेंस नहीं हो सकती। एज अ रिजल्ट आपका आंसर होगा फॉर एरोमेटिक ऑप्शन बी। बी इज एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई के लिए हक्कल रूल है ये, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ये याद रखना है। दिस इज हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, और इसमें n का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 2 3 सो ऑन, एंड इस तरह से ये 2 पाई, n अगर 0 लेते हैं तो 2 पाई, when n is 1, 6 pi, n is 2, it is 10 pi. Accordingly, you can extend the value. All of them are aromatic. Very important topic for general organic chapter. Which compound is aromatic, right? ये हक्कल रूल की हेल्प से आपने एरोमेटिसिटी के रूल्स देख लिए। अब हम आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। Which of the structures given below would be aromatic? Again, another question on aromatic. You are given a compound. First compound has got how many electrons? फर्स्ट के अब अगर इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे तो 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड मीन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई पे सिस्टम तो एंटी एरोमेटिक हो जाता है, और एंटी एरोमेटिक आर हाईली अनस्टेबल, दे डोंट एग्जिस्ट, दे आर हाईली अनस्टेबल, दे डोंट इवन एग्जिस्ट। फिर बी ऑप्शन मतलब सेकेंड कंपाउंड, इट हैज गॉट अगेन 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगेन इट इज एंटी एरोमेटिक, इसका नाम है साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइन, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सी ऑप्शन चेक करते हैं। इन थर्ड कंपाउंड you are given a double bond and then negative charge at 2 places. It has got 6 pi electrons. 6 pi से ये सिस्टम एरोमेटिक होता है। नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। डी क्या है, साइक्लोप्रोपाइल, फिर डबल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज। इट इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपिनाइल, इसका नाम है साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटायन। एंड इट यू कैन सी पॉजिटिव चार्ज में तो कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है। कैन आई से देयर आर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज देयर इज ओनली 1 डबल बॉन्ड, तो 6 पाई एंड 2 पाई आपके पास है, तो ये सिस्टम एरोमेटिक है। वी कैन मेंशन हेयर दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। साइक्लिक सिस्टम विच इज कॉन्जुगेटेड, अगर वो 4 पाई है तो वो बनेगा एंटी एरोमेटिक, बट अगर वो 2 पाई या 6 पाई होगा तो वो बनेगा एरोमेटिक। एंड एरोमेटिक आर हाईली स्टेबल। आपका आंसर है थर्ड और फोर्थ कंपाउंड एरोमेटिक हैं। थर्ड फोर्थ कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में। वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ देम इज एरोमेटिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Hyperconjugation is possible in which of the following species? For hyperconjugation आपको क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो देखना है, आगे ऑप्शंस बाद में देखते हैं। We can mention hyperconjugation के लिए एक तो sp2 कार्बन चाहिए, आफ्टर दैट यू रिक्वायर अल्फा हाइड्रोजन। sp2 कार्बन एल्कीन के अंदर होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, एंड कार्बोकेटाइन ऑल्सो हैज गॉट sp2 कार्बन। कार्बोकेटाइन एंड एल्कीन बोथ आर हैविंग sp2 कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन भी चेक करना है। ए ऑप्शन इज सम कार्बन आयोन गिवन। इन ए ऑप्शन हमें ये आइसोप्रोपाइल कार्बन आयोन दिया गया है, और इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कार्बन आयोन तो sp3 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं आएगी। विच हैज हाइपर कॉन्जुगेशन वो बताना है। बी ऑप्शन इज टॉल्वीन। C6H5CH3 इज गिवन टू यू, तो आपके पास ये C6H5 है और ये CH3,
we can expand all the three hydrogens. Carbon carbon double bond is sp2 carbon, and next carbon पे sp2 से जो अगला कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं. You can see अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, so it will have hyper conjugation. ठीक है, दीज आर दी कंडीशंस हमने मेंशन कर दी हैं. कंडीशन क्या है, एक sp2 कार्बन, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन, दोनों की दोनों अवेलेबल है. सी ऑप्शन में इथीन दिया है, इथीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता. इथीन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, sp2 कार्बन है बट नो अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा. डी को चेक करिए, डी को यहीं पे देख लेते हैं. ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है बट नो अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन बट नो अल्फा हाइड्रोजन इन डी ऑप्शन. तो आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ बी में बनेगा. बी मॉलिक्यूल का नाम टॉल्यूइन है. वी कैन ड्रॉ दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन टॉल्यूइन. एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो हमारे पास किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है. हाइपर कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट सिग्मा पाई डीलोकलाइजेशन और इट इज कॉल्ड एज सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन. CH बॉन्ड उसमें इन्वॉल्व होता है. CH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. तो हम जो फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें आप देखो देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन फॉर फ्यू सेकेंड्स, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और रिंग के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आपको मिलेगा. फर्दर फिर रेजोनेंस हो जाएगी. अभी मैंने फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ की है. जब रेजोनेंस होगी तो पाई तो नेगेटिव चार्ज मूव करेगा. अभी तो ये ऑर्थो पे है, फिर ये पैरा पे भी जाएगा, फिर ये नेक्स्ट ऑर्थो पे जाएगा. इन दिस मैनर हाइपर कॉन्जुगेशन के कंडीशंस लर्न करने हैं एंड आंसर होगा ऑप्शन बी. एल्कीन्स में, कार्बोकेटाइंस में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है बट कार्बोनाइन में नहीं होता. आते हैं क्वेश्चन नंबर 13. इन CH3 सॉरी इन दिस मॉलिक्यूल, ये एनिलीन के ऊपर H है, दिस इज कॉल्ड एज एनिलीनियम आयन. एनिलीनियम आयन ये स्ट्रक्चर आपको दिया है. NH2 होता अगर तो एनिलीन होता बट NH3 प्लस इज गिवन. अब कोई भी लोन पेयर नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर. अगर ये NH2 होता तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता, तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर रिंग को देना था, उसको प्लस R कहते हैं क्योंकि रिंग को वो लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू देता है. बट हमारे मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पे. एनिलीनियम आयन इसका नाम है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है. इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगी और ये सिचुएशन बनेगी. यू विल हैव डबल बॉन्ड हेयर. नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लेने हैं, इंडक्टिव इफेक्ट. और सेकंड थिंग, ये गलत किया मैंने, इसका पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं करना है. पाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं विड्रॉ हो सकता वरना नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे. ये सिर्फ -I इफेक्ट शो करेगा. पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करना. -I इफेक्ट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल विल टेक प्लेस बट ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स. इलेक्ट्रॉन विड्रॉल थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स. इंडक्टिव इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होते. अगर पाई इन्वॉल्व हो गया फिर तो रेजोनेंस बोल देंगे. रेजोनेंस क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है. नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है. उस सिचुएशन में भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है जो कि आपको दिख रहा है मॉलिक्यूल में, राइट. इंडक्टिव इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड. इट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नाइट्रोजन की तरफ आ जाएंगे बट पाई इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करना, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होता कभी भी. सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाते हैं. गॉट इट. तो आंसर है ऑप्शन सी. -I ग्रुप की तरह ये एक्ट करेगा. पर अगर ये सिचुएशन होता हमारे मॉलिक्यूल का, लेट्स से कि मॉलिक्यूल एनिलीन है. एनिलीन में आप देखो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, तो +R एंड -I दोनों इफेक्ट रहेंगे. बट हमें तो एनिलीन नहीं दिया था, हमें एनिलीनियम आयन दिया था. ओनली -I इज योर आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th. The formation of cyanohydrin from a ketone is an example of.
साइनोहाइड्रिन बनता है जब, तो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. लुक हियर, वी आर गिवन साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन एल्डिहाइड के ऊपर ले सकते हैं, कीटोन के ऊपर भी होता है. जब HCN ऐड करेंगे तो ये सिचुएशन होती है, कार्बन हैज गॉट अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, और साइनाइड का जो CN नेगेटिव है वो कार्बन पे अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल. CN नेगेटिव एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड पाई इलेक्ट्रॉन फिर ब्रेक हो जाएगा, वरना तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे. कार्बन के 4 ही बॉन्ड रखने हैं और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. अभी हमने यहाँ साइनाइड को अटैच कर देना है. दिस इज CN अटैच्ड हेयर. तो आप इस तरीके से फर्स्ट स्टेप में हम H को हटा देते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ साइनाइड का अटैक दिखाया. ये वाले स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप जब आएगा तो H पॉजिटिव भी अटैच हो जाता है ऑटोमेटिकली. जहां नेगेटिव चार्ज है H पॉजिटिव वहां लग जाता है. और प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहीड्रल है, उसका कार्बन sp3 एंड इट इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन. साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म्ड. तो इस तरीके से स्लो स्टेप में किसने अटैक किया ये देखिए. फर्स्ट स्टेप पे स्लो स्टेप के अंदर साइनाइड ने अटैक किया. साइनाइड एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये एडिशन हो रहा है. अल्टीमेटली आपके मॉलिक्यूल में साइनाइड भी अंदर चला गया, H भी अंदर चला गया. H जाके ऑक्सीजन को लग गया, साइनाइड कार्बन को लग गया. तो एडिशन हो रहा है, बट कैसा एडिशन है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक? सॉरी, मुझे ए लिखना था ना. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मीन्स ए ऑप्शन. व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक? बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन द स्लोएस्ट स्टेप. राइट. अब आगे आते हैं. इंपॉर्टेंट था ये. एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर हमेशा, अभी तो कीटोन दिया है, एल्डिहाइड भी सेम तरीके से रिएक्ट करेगा. एल्डिहाइड लेना है सपोज, तो आपको दोनों जगह R लगाना है और जब HCN ऐड होगा एल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बनेगा. उसका फाइनल स्ट्रक्चर ये बनेगा. ये भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है क्योंकि साइनाइड का जो कार्बन है वो नेगेटिव है और एल्डिहाइड का कीटोन का कार्बन है पॉजिटिव. गॉट इट? तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसका नाम है. जनरल टर्म है फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी of the given conjugate basis is very very important for this chapter. इस चैप्टर में एसिडिटी और बेसिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए बिकॉज ये ऑर्गेनिक में बार बार यूज होता है. यू आर गिवन RCO नेगेटिव, देन HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, NH2 नेगेटिव एंड R नेगेटिव. इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर देना है. तो देखिए, पहले हम इनके सबके कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे. ये कॉन्जुगेट एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर है HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, इसका कॉन्जुगेट एसिड है ये. एक H देने से आप उनके कॉन्जुगेट एसिड लिख रहे हो. मेरे पास सेकेंड कंपाउंड जो था उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया एसिटाइलिन. थर्ड था NH2 नेगेटिव, उसको भी एक H प्लस देंगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा. फोर्थ आपको R नेगेटिव दिया है, उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया RH. RH इज नथिंग बट एल्केन. सो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा? कैसे देखेंगे हम बेसिसिटी ऑर्डर या एसिडिटी ऑर्डर? ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक conjugate base. Strong acid has a weak conjugate base and vice versa. Got it? तो स्ट्रॉन्ग एसिड इनमें से कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिटाइलिन में से ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड. तो अगर मुझे इनका एसिडिटी ऑर्डर देना है तो नंबर 1 पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएगा एसिटाइलिन, उसके बाद आएगा अमोनिया, उसके बाद आएगा एल्केन. लेट्स राइट द एसिडिटी ऑर्डर. एसिडिटी ऑर्डर इज out of the given 4 compounds, carboxylic acid is strongest of all, then it is acetylene. अमोनिया ज़्यादा एसिडिक होती है एल्केन से, क्योंकि अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एल्केन में तो कार्बन है ना,
तो नाइट्रोजन विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, अमोनिया इज मोर एसिडिक। तो अब आप बेसिसिटी ऑर्डर लिख सकते हो, ऑपोजिट ऑर्डर देना है। तो बेसिसिटी ऑर्डर विल बी RCO negative is less basic than HC triple bond negative, less basic than this। R नेगेटिव तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑर्गेनिक में बार बार यूज होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस ग्रिग्नार्ड के अंदर मिलता है, RMGX के थ्रू हम R नेगेटिव बना लेते हैं। तो कीप इन माइंड, जैसे कि एल्केन है, मीथेन, इथेन, वो बिल्कुल एसिडिक नहीं होते। मीथेन से अगर H हटा दिया और मिथाइल बना दिया, ये इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3 नेगेटिव मिथाइल, इथेन से इथाइल। तो ये जो बेसिस हैं दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। ये आपके सबस्ट्रेट में से H+ को निकाल लेंगे क्योंकि इनको H+ चाहिए। मिथाइल CH3 नेगेटिव आयन इज नॉट स्टेबल, ये H+ कहीं ना कहीं से लेके मीथेन बन जाएगा। कहाँ से लेगा? आपके सबस्ट्रेट से, आपके रिएक्टेंट से। आपके रिएक्टेंट में जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है उसको ये बाहर निकालेगा, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस R नेगेटिव और सबसे वीक RCO नेगेटिव। देखिए अब RCO नेगेटिव वीक बेस क्यों है? कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब RCO नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे फिक्स नहीं रहता है। इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑन कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन्स। वी कैन मेंशन लाइक दिस, नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड ओवर दीज 3, 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज स्प्रेड है। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जब नेगेटिव चार्ज किसी एक एटम के ऊपर नहीं है, नेगेटिव चार्ज बाहर कैसे दिया जाएगा? जब तक नेगेटिव चार्ज डोनेट नहीं होता तब तक हम इसको बेस नहीं कह सकते। अ गुड बेस हैज कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस कहते हैं। गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट पॉसिबल? तो हमारे क्वेश्चन सारे तरह के इफेक्ट्स के ऊपर आ रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इंटरमीडिएट्स में आपने कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल्स देखा। तो आता है हाइपर कॉन्जुगेशन किसके अंदर पॉसिबल नहीं है। फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन हमारी कंडीशंस क्या क्या होती हैं? sp2 कार्बन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ए ऑप्शन को ड्रॉ करते हैं। इन ए ऑप्शन वी आर हैविंग सम नाइट्रो अटैच्ड एंड OH इज अटैच्ड एंड वी हैव sp2 कार्बन, sp2 कार्बन एंड फर्दर हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये अल्फा कार्बन है। तो इसमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन बन जाएगा। बी को ड्रॉ करें, दिस वाज ए। इन ऑप्शन बी वी हैव अ रिंग एंड मिथाइल एट द टॉप, क्लोरीन एट द बॉटम एंड डबल बॉन्ड एंड देन sp2 कार्बन इज क्लियरली विजिबल। sp2 कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, उसके ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, सिग्मा पाई और ओवरलैप हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, CH3, सी ऑप्शन में ये sp2 कार्बन है बट फर्दर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, रादर लोन पेयर है। नो हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन सी। डी को देखते हैं, लेट मी ड्रॉ द डी ऑप्शन नाउ। सी तो वहीं पे ही सॉल्व हो गया। डी के लिए हमारे पास एक तो रिंग है, उसके बाद इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मिथाइल्स हैं, बहुत सारे अल्फा कार्बन है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, बट 6 अल्फा हाइड्रोजन आर अवेलेबल। जो लेफ्ट पे अल्फा है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, वहां अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं। राइट साइड पे दोनों मिथाइल में 3-3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, टोटल 6। सो हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ एक में पॉसिबल नहीं है, वो है ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 17th. Which among the following carbocations is most stable? Most stable कौन सा है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। ए ऑप्शन का नाम क्या है? साइक्लोप्रोपाइल, 3 बारी है वो, साइक्लोप्रोपाइल, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। फिर और आपको दिया है बेंजाइल कार्बोकेटायन,
फिर 2 बेंजाइल लगे हैं सी ऑप्शन में, डी के अंदर बेंजाइल भी है और मिथाइल भी है, सब स्टेबल है, सब में रेजोनेंस है। रेजोनेंस सी में, बी में, डी में, सब के अंदर है। हम ए की बात करेंगे पहले। ए ऑप्शन के अंदर जो कार्बोकेटाइन आपको गिवन है उसमें ये पॉजिटिव चार्ज और ये सिचुएशन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो साइक्लोप्रोपाइल, इट इज हाईली अनस्टेबल। दिस स्ट्रक्चर हैज एंगल स्ट्रेन। इसके अंदर के कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिंगली बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp3, बट यहाँ बॉन्ड एंगल 109.5 नहीं है, बॉन्ड एंगल तो 60 डिग्री है सिर्फ। सो हाईली एंगल स्ट्रेन इसके अंदर, इट इज हैविंग स्ट्रेन ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल एंगल, राइट। तो ये रिंग ओपन अप हो जाती है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं ताकि पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बन पे वो खत्म हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाए। सो बेंट ऑर्बिटल्स हैं, बेंट ऑर्बिटल्स झुके हुए हैं 60 डिग्री एंगल की वजह से। बेंट ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोप्रोपाइल रिंग ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन। ये किसके साथ ओवरलैप कर जाते हैं? जो कार्बोकेटायन का एम्प्टी p ऑर्बिटल है उसके साथ ओवरलैप करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। दे ओवरलैप विद द p ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकेटायन एंड डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं तो कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाता है। सो इट इज हाईली स्टेबल। गॉट इट? तो दोबारा से देखो, अगर मैं 3 की जगह एक ही रिंग बना के दिखाऊं, ये सिचुएशन है हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, लेट्स से कि एक ही रिंग है, तो आपने इस बॉन्ड को क्लीव कर देना है। ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हटा के ये सिचुएशन अराइज होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है, तो इस वजह से ये स्टेबल है। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी कहाँ से मिल रही है? पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कब होगा? जब उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। क्यों सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? क्योंकि रिंग साइक्लिक है, जो दैट इज नॉट स्टेबल, इट वांट्स टू ओपन अप। सो आपके पास बी सी डी सब में रेजोनेंस है जो कि पाई बॉन्ड से होगी, बट ए आंसर है, मोस्ट स्टेबल ए होता है। कीप इन माइंड, cyclopropyl methyl carbocations are extraordinary stable. Moving to the next question, number 18. Which of the following carbocation is not formed easily? कौन सा नहीं बनेगा? ए ऑप्शन तो ये है, 3 बारी फिनाइल रिंग ए ऑप्शन में दी है, C6H5 thrice and a positive charge on the carbon. This is highly stable. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे बनेंगे। बी के अंदर जो कार्बोकेटायन है उसमें भी रेजोनेंस है, दिस इज एलाइल कार्बोकेटायन, ये भी स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। सी जो है ये ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटायन बना रखा है, जो कि कभी नहीं बनता एट द ब्रिज हेड पोजीशन। कीप इन माइंड, एट bridge head position carbocation is not stable. Carbocation is not stable, कभी नहीं बनेगा। डी के अंदर एलाइल है, एलाइल में भी रेजोनेंस है तो ये भी बनेगा। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इट इज नेवर फॉर्म्ड। गॉट इट? कमिंग टू क्वेश्चन 19. What is the decreasing order of stability of the ions? Other carbocations are given now. First one is the isopropyl carbocation. फिर हमें दिया है, सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड में जो ऑक्सीजन है ना पॉजिटिव चार्ज के साथ, वो इसको स्टेबल बनाएगी क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। Whenever a heteroatom having lone pair is attached to the carbocation, that carbocation is highly stable because it will donate electron. इसका रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये है,
पॉजिटिव चार्ज अब ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ऑक्सीजन ने 2 में से 1 लोन पेयर दे दिया, एज अ रिजल्ट फिर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, कार्बन की डेफिशिएंसी हैज बीन रिमूव्ड, डबल बॉन्ड आ गया। तो जहां पे आपको पॉजिटिव चार्ज से नेक्स्ट कार्बन पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दिखता है, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन मतलब लोन पेयर अवेलेबल होगा, एज अ रिजल्ट रेजोनेंस हो जाती है, वो कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल होता है। दिस इज हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन। क्लियर? अब थर्ड कंपाउंड क्या है, थर्ड को फिर से ड्रॉ करेंगे। इन द थर्ड स्ट्रक्चर वी आर गिवन CH3, देन CH with पॉजिटिव चार्ज एंड COCH3। लेट मी चेक, थर्ड हमने ठीक से ड्रॉ कर लिया। यस, थर्ड में आप देखिए यहाँ कीटो लगा है, कीटोन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली साथ में अटैच्ड है। जो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थी, पॉजिटिव चार्ज था, ये उसी में से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। जो पहले से ही इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है उसके इलेक्ट्रॉन अगर ये विड्रॉ कर लेगा तो ये जो है कार्बोकेटायन ये अनस्टेबल हो जाएगा। आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर में नंबर 2 इज मोस्ट स्टेबल, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्योंकि यहां तो जो कार्बोकेटायन है ए ऑप्शन में ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री में हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा, और बी में तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस से आ रही है। रेजोनेंस क्यों हो रही है? क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट था कार्बन से नेक्स्ट एटम पे, नेक्स्ट एटम था ऑक्सीजन। कीप इन माइंड, जब जब कार्बन के नेक्स्ट एटम पे कोई लोन पेयर होगा वो कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल हो जाता है। उसके बाद सी ऑप्शन के अंदर हमारे को दिया है एक कार्बोकेटायन विद सम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Carbocations are destabilized with electron withdrawing group. Carbocations get stabilized. They get stabilized by electron releasing group, and the carbocations get destabilized by electron withdrawing group. Got it? तो आपके पास 19th क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सेकंड इज मोस्ट स्टेबल, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। थिंग्स आर क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन्स। अब हमें कार्बन आयन का स्टेबिलिटी पे कमेंट करना है। फर्स्ट के अंदर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन आयन दिया है, 2 के अंदर दिया है आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन, 3 के अंदर इथाइल दिया है, 4 में बेंजाइल दिया है। तो बेंजाइल तो मोस्ट स्टेबल होगा, बेंजाइल विल हैव रेजोनेंस। दिस इज द सिचुएशन फॉर द फोर्थ कार्बोकेटायन, इट इज बेंजाइल एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबल ड्यू टू resonance. Negative charge will get dispersed over all the 7 carbons. Got it? तो टर्शरी ब्यूटाइल जो फर्स्ट कंपाउंड था उसको जब आप एक्सपेंड करोगे, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इस कार्बन आयन को अनस्टेबल बना देंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो जिसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है उसको 3 डायरेक्शन से नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा इंटेंस हो गया, तो मतलब कोई भी पॉजिटिव इस पे अटैक कर सकता है। तो हमारे को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन में बेंजाइल के बाद लिखना है 1 डिग्री स्टेबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन्स। गॉट इट? तो अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। हमारा सिचुएशन है कि फोर्थ इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस की वजह से, फिर ये 1 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, 1 डिग्री विल बी रिटन, 1 डिग्री इज रिटन इन थर्ड कंपाउंड, 2 डिग्री सेकेंड कंपाउंड है और ये फर्स्ट कंपाउंड है। आपका करेक्ट आंसर फॉर स्टेबिलिटी है ऑप्शन बी, राइट? कार्बोकैटायन का ऐसा नहीं होता, ये स्टेबिलिटी कार्बन आयन का है। कार्बोकैटायन हो अगर तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, कार्बन आयन में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, बट बेंजाइल तो टॉप पे ही आएगा, बेंजाइल में रेजोनेंस है। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एरोमेटिक? यू आर गिवन बेंजीन एंड देन साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन। देखो ए ऑप्शन तो बेंजीन है, सिंपल, ये तो एरोमेटिक है, इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
B option is cyclopentadienyl cation, 5 membered ring बनाएंगे, 2 डबल बॉन्ड, तो pentadienyl हो गया एंड ए पॉजिटिव चार्ज। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन में क्या आप देख सकते हो कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। सी ऑप्शन इज ट्रोपाइलियम कैटायन, ट्रोपाइलियम तो 7 मेंबर्ड रिंग है। You can show 1 2 3 4 5 6 and 1 7 membered ring and 3 double bonds at alternate position, positive charge। ट्रोपाइलियम इज 6 पाई सिस्टम एरोमेटिक होता है। फिर है साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड 2 डबल बॉन्ड्स, नेगेटिव चार्ज, दिस इज 6 पाई। तो विच इज नॉट एरोमेटिक पूछा गया था। 6 पाई हक्कल रूल को फॉलो करता है। हक्कल रूल में साइक्लिक होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट जहां 4 पाई आएगा वो एंटी एरोमेटिक होता है, वो स्टेबल नहीं होता, हाईली अनस्टेबल होता है। आपका आंसर फॉर कंपाउंड क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑप्शन बी। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटायन इज नॉट एरोमेटिक, रादर इट इज एंटी एरोमेटिक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 22। चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग। You are given some compounds. A option is aniline, C6H5NH2. This is aniline. B ऑप्शन में एनिलीन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो अटैच्ड है, नाइट्रो इज अटैच्ड। सी के अंदर देखिए यू हैव एनिलीन एंड नाइट्रो इज अटैच्ड, बट इट इज अटैच्ड एट मेटा पोजीशन। डी ऑप्शन इज बेंजाइलामीन, दिस इज बेंजाइलामीन। तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस देखना है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड एज बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को बेस बोला जाता है। कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ए तो नहीं करेगा, इसने तो अपना रेजोनेंस की वजह से लोन पेयर रिंग को दे दिया है, तो ये बाहर किसी को इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकता। सी के बी में नाइट्रो विड्रॉ करता है, इसमें रेजोनेंस तो है बट नाइट्रो विड्रॉ कर लेगा और -R से ये विड्रॉ करता है, तो ये वीक बेस है एज कंपेयर टू ऑप्शन ए। सी के अंदर भी नाइट्रो विड्रॉ कर रहा है बट -I से करता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कभी रेजोनेंस नहीं होती, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से ये विड्रॉ करेगा, तो ये भी एक वीक बेस है। बट हमें क्या देखना है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ये कंपाउंड जिसका नाम है बेंजाइलामीन। इन बेंजाइलामीन नो रेजोनेंस इज देयर। रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए, अंदर कॉन्जुगेशन है रिंग में, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, बट फिर भी ये सिस्टम कॉन्जुगेटेड नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम इज sp3 कार्बन। sp3 कार्बन सेंटर में आ रहा है तो रेजोनेंस नहीं होता है, उसकी वजह से नॉन प्लेनर हो जाता है स्ट्रक्चर, नो रेजोनेंस। देयरफॉर lone pair of nitrogen is present on nitrogen itself and it can be donated to something outside, therefore it is a very strong base। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बेंजाइलामीन जो ये कंपाउंड है ये एक अच्छा बेस है, बट एनिलीन इज अ वीक बेस। एनिलीन में रेजोनेंस से लोन पेयर नाइट्रोजन वाला कार्बन की रिंग में चला जाता है। आपको देखना था स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, आपका आंसर है ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? So we have done many questions. That is all about the lecture. You have taken up the concept of acidity, concept of basicity, which is a good electrophile, which is a good nucleophile, and stability of carbocation is the main topic. Among carbocations, tropylium is most stable, and we have aromatic system, aromatic nature of tropylium, and otherwise if you have cyclopropyl methyl structure written in carbocation, that is also very stable, and the concept of strong acid has a weak conjugate base and weak acid has a strong conjugate base. This concept will be used in organic questions in all chapters of organic, and this is very important. Out of the 4 compounds, how to give the acidity order, how to give the basicity order, that thing you can answer only if you know the effects, if you know inductive effect, if you know that mesomeric and electromeric effect, hyperconjugation, then only we can mention whether the given compound is a good acid or it is a good base,
or it is neutral. What are the conditions under which the given molecule or the given ion can act as electrophile or it can act as nucleophile, right? So ये सब आपने basic organic chemistry में सीखा है. Further types of reaction we will be taking up in the next lecture of this chapter, where the SN1, SN2, E1, E2 will come and questions will come on the addition reactions. That thing will be based on these questions only, on these concepts only, right? Hope you are enjoying the benefits of our lectures, and make sure you subscribe to the channel. That will be important for your revision. Thank you and bye bye.